विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि आज हमारा 5 बजे का भी प्रोग्राम है एंड फिजियोथेरेपिस्ट हैज टू लीव अर्ली बिकॉज ऑफ वन अदर schedule too by 4:45 4:50. So I'll just start with the show today, and just for everyone's reference, earlier we had a show जो आप लोग के creatives में पहुंचा होगा. We had a show with Dr. Garima, but she had some personal emergency due to which she wasn't able to join us today. So we have physiotherapist Rupal with us today. So I'll just request everyone to please go on mute, otherwise I'll mute from my end in some time. So without any further delay, I'll just like to welcome Rupal to the show today. Thank you, ma'am. So good evening, Rupal. So as you all know, for us at Emoha, health of our elders is the most important aspect, along with other engagement activities, definitely. So over here, I would like to introduce first of all Rupal to you all. So basically, Rupal has been continuously working for last 5 years with several and various hospitals, as well as in OPDs, as well as she has been doing a lot of video consultations and home visits. And apart from that, she specifically deals with ortho and sports cases. And also, as you all know, our today's topic is knee osteoarthritis. So firstly, she will be explaining you a bit about knee osteoarthritis, and post that she will be displaying and presenting a few exercises which can definitely help you in relieving your pain with respect to osteoarthritis. So welcoming you once again, Rupal. And Rupal, thank you for agreeing for this show at a very short notice. Thank you. Thank you, ma'am. Hello, everyone. This is physiotherapist Rupal Srivastav. Today we are discussing about osteoarthritis of knee. As you all can hear, it is very common in elderly patients. तो आज हम उसके बारे में we will discuss a little about osteoarthritis. So basically, osteoarthritis is a joint degenerative disease which causes to everyone at some age of their life. Basically, it is associated with wear and tear phenomena of our articular cartilages. ये elderly patients में बहुत common होता है. Painful chronic inflammatory disease होती है जो mostly affect करती है हमारे knee joint को. But sometimes it also affects our other joints like our hip joint, hand and hip and spine. So इसके जो few symptoms होते हैं जो आप mostly feel करते हैं, आपको knee में pain होता है. There is a pain in the knee, majorly in the middle side of the knee. Second, आपको knee में stiffness होती है, swelling होती है, आपको उठने बैठने में दिक्कत होती है. You are not able to sit properly or stand properly. आपको चलते time you can feel the voice inside your knee. आप उसको हम crepitus कहते हैं, वो आपको knee में feel होता है. Basically इसके causes बहुत हो सकते हैं. एक तो इसके unknown causes भी है और इसके known causes भी हैं. जो unknown causes है इसके, that is कि age के साथ साथ degeneration होता है हमारी body में. उसकी वजह से हमारे को एट सर्टेन एज पे हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. सेकेंड जो इसके सेकेंडली कॉजेज होते हैं, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ओबेसिटी, जिसको हम कहते हैं कि आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है. एक्चुअली आफ्टर वेट गेन आपकी नीज पे बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ता है, विच कॉजेज द डीजनरेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेजेस ऑफ द नी. सेकेंड हो गया हमारा जॉइंट की हाइपर मोबिलिटी और इंस्टेबिलिटी, मतलब कि आपके जॉइंट्स के अराउंड जो हमारी मसल्स होती हैं वो वीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो रहा है, हमारा लाइफ शेड्यूल ऐसा है कि हम कुछ उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. उसकी वजह से हमारे जॉइंट में थोड़ी इंस्टेबिलिटीज वगैरह हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड है हमारा कुछ आपकी प्रीवियस इंजरी हुई हो, कुछ आपके एक्सीडेंट हो गए हो, या फिर आपको फॉल हो गया हो, आप गिर गए हैं और आपका जो मेजर ब्लो जो आया है वो आपके नीज पे आया है.
तो ये कंडीशन भी हमारा क्रिएट कर सकती है कि आपको फ्यूचर में जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। कंजेनाइटल भी ये हो सकता है कि लाइक अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री चल रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो आपको जो है आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है कि फेस करना पड़े। और इसका एक मेजर जो कॉज होता है वो होता है इमोबिलाइजेशन, मतलब कि लैक ऑफ मोबिलिटी टू योर जॉइंट। आजकल बहुत ही ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसमें कि हमको हमारे सारे काम जो होते हैं आपके एक ऑर्डर पे सारे हो जाते हैं। लाइक आपको टीवी ऑन करना है, फैन ऑन करना है, हर जगह आपको कहीं ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा चलना फिरना बहुत कम हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारा जॉइंट मोबाइल नहीं हो पाते हैं। तो बेसिकली जो इमोबिलिटी होती है वो भी इसका बहुत ज्यादा एक बहुत ही मेन रीजन है। अब अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इसकी क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। तो एक तो इसका ये होता है कि आपको पेन होता है विद मूवमेंट। जब भी आप चलेंगे, आपका नी का कोई भी मूवमेंट हो रहा है, इफ यू आर स्टैंडिंग, यू आर ट्राइंग टू स्टैंड अप व्हाइल यू आर सिटिंग, आपको पेन होगा। आपको कोई भी नी का मूवमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको पेन होगा। आपके नी में बेसिकली स्टिफनेस होगी, और ये स्टिफनेस आपको मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ी ज्यादा फील होगी। आपकी जो रेंज है नी की वो कम हो जाएगी। लाइक आप प्रॉपरली नी को बेंड नहीं कर पाओगे या फिर उसको प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं कर पाओगे, उसमें प्रॉब्लम होने लगेगी आपको। आपको नी में नी को बेंड करते टाइम और स्ट्रेट करते टाइम यू कैन फील सम क्लिकिंग साउंड इनसाइड योर नी। आपको जॉइंट पे पेन फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि स्वेलिंग हो गई है, आपका जॉइंट बड़ा हो गया है। तो ये सब कंडीशंस होती हैं, ये सब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती हैं कि आपको फील हो रहा है कि हाँ आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का स्टार्ट हो रहा है। इसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास बहुत ही ज्यादा डायग्नोस्टिक मेजर्स हैं। लाइक हम इसको एक्सरे के लिए जा सकते हैं। एक्सरे में आपको क्लियरली सीन हो जाएगा कि आपकी जो जॉइंट स्पेस है, दो बोन के बीच में जो जॉइंट स्पेस होता है वो रिड्यूस हो गई है, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हो गए हैं। सेकेंड एमआरआई होता है, हम एमआरआई करके भी इसको कंफर्म करवा सकते हैं। वो आपके जो भी डॉक्टर होंगे वो जैसे कंसल्ट करेंगे, हम उस तरह से इसको डायग्नोज कर सकते हैं। Now we are moving towards the treatment part. Basically, there are two types of treatment. One is conservative treatment and the other is a medical approach. Basically, in the initial stages, we don't need surgery for our knee joint. Starting में it can manage conservatively. So conservative management में भी there are two approach. Like one is from medications, and with medications there are few physical therapy. There are physical therapy which can improve your knee. Okay, so in conservative treatments we focus on the few points like reducing the pain, self education and optimize function. Like हमें पेन भी कम करना है। हम कैसे, अब ठीक है हमें अर्थराइटिस हो गया है, लेकिन हम इसके साथ हमारी लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वी कैन मैनेज, वी कैन फोकस ऑन दैट बेसिकली। लाइक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हमें पेशेंट की एजुकेशन बहुत जरूरी होती है कि हमें आपको बताना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ठीक है इट इज नॉट की वर्स कंडीशन की इसके बाद अच्छा अगर मुझे नी में अर्थराइटिस हो गया है तो मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। इट इज जस्ट नॉट लाइक दैट। ठीक है, आप सब कुछ एक, अगर हम एक फोकस अप्रोच में चलेंगे तो हम सारे काम अपने डेली एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरह से फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड है एक्सरसाइज थेरेपी। There are few exercises which literally help you in improving the strength of your muscles, increasing the range of the motion and decreasing the stiffness of the joint. Basically इसमें फिर weight loss की approach भी आती है। जिन patients में like बहुत ही obese हैं, बहुत ही ज़्यादा weight है, तो उनको basically थोड़ी ज़्यादा problem होती है इससे recover होने में, क्योंकि while we are standing, walking or any other activity, most of the weight of your body goes into the knees. ठीक है, तो उसकी वजह से आप हमारे जो नी होते हैं इनको बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो जॉइंट होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बिकॉज ऑफ प्रेशर वो स्पेस धीरे धीरे कम होने लगता है, और हमारे जो जॉइंट है वो आपस में फ्रिक्शन उनमें क्रिएट होने लगते हैं, वो आपस में घिसने लगते हैं साथ में। ठीक है, तो ये हम जो है हम एक्सरसाइज की हेल्प से
इसको ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली वेट लॉस जो होता है एक अप्रोच होती है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिकवर करने की। फिर नी की हम ब्रेसिंग भी होती है कि आप जब वॉक कर रहे हो लॉन्ग स्टैंडिंग, आपको ट्रैवल करना है या आप वॉक कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है आप ब्रेस यूज कर सकते हैं। तो ब्रेस बेसिकली सपोर्ट योर नी, तो जो एक्सेसिव मूवमेंट होता है हमारे नी का, इट कैन प्रिवेंट दैट। लाइक फिर हम जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, तो बेसिकली हम प्रॉपर असेसमेंट करते हैं in which we can see if there is any swelling, is there any inflammation, what are the like की स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, आपका रेंज ऑफ मोशन कैसा है, आपका स्ट्रेंथ कैसी है, और आपको बैलेंस में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बिकॉज ऑफ ओवरवेट आपको समटाइम्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हम ठीक से चल नहीं पाते हैं, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारी नीज वीक है, हमारी मसल वीकनेस है, तो हमें ऐसा लगता है कि लाइक हम जो है वॉक करते टाइम गिर ना जाए, रिस्क ऑफ फॉल इंक्रीजेस विद दिस। ठीक है, तो बैलेंस में भी इशू होते हैं हमारे, तो वी कैन सॉल्व दीज इश्यूज। सेकेंड, अब फिजियोथेरेपी, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन ऑस्टियोआर्थराइटिस? तो फर्स्ट देयर इज अ पेशेंट एजुकेशन विच I said earlier कि which is very important. Patient education is very important. Like we will tell you about the nature of the pain कि आपको पेन किस तरह से परेशान कर सकता है, मॉर्निंग में ज्यादा है, किस एक्टिविटी में ज्यादा है, वो हम आपको बताएंगे। फिर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, हमें इस पेन का कैसे करना है, आपकी कंडीशन का कैसे करना है, वी विल टीच यू दैट। एंड वेट लॉस, ये आपको कैसे करना है। ठीक है, फिर देयर आर सम एक्सरसाइजेस विच हेल्प यू इन रिलीविंग द पेन, रिड्यूसिंग द स्टिफनेस, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है हमें, हम आपको वो एक्सरसाइज सिखाएंगे। इसमें आप एक्सरसाइज में यू कैन डू, देयर आर फ्यू एक्सरसाइजेस जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। बेसिकली दीज आर ऑल आर नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अब एक्चुअली अगर हम नी पे एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हैं, तो इसके साथ साथ वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर हिप मसल्स आल्सो। ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअली इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आपका नी वीक है तो इसका लोड आपके एंकल पे भी आएगा और इसका लोड आपके हिप्स पे भी आएगा, तो वी हैव टू ट्रेन दीज मसल्स आल्सो। ओके श्योर, ठीक है। लाइक these are few exercises I am going to tell you. First exercise, आपको there is nothing to do, you all you have to do is just sit on the chair. After that आपको आपके लेग को स्ट्रेट करना है, सॉरी लेग को स्ट्रेट करना है। नाउ पुल योर फुट टुवर्ड्स योरसेल्फ, होल्ड इट फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अगेन from other knee, 1 2 3 4 5, relax. We will repeat it 10 times. Alternate, you can do it alternatively, or you can do it first from the right leg and then after left leg. Okay, again 1 2 3 4 5, relax. लेग को कितना उठाना है? At your level, आपको ना स्ट्रेट करना है नी को। आप हाँ, should we say 90 degree? Yeah, we can say that 90 degree. आप जिस भी चेयर पे बैठे हो या फिर आप जब भी बेड पे बैठे हो, तो you can just straighten your knee, okay, like this. Okay. जरूरी लाइक मेरा नी ठीक है तो मैं इसको पूरा स्ट्रेट कर पा रही हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि इफ यू आर हैविंग ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आपका नी पूरा नहीं उठे। ठीक है, तो जितना भी वो उठ रहा है, जस्ट लिफ्ट इट अप and pull your foot towards yourself, okay, and hold it for 5 count. Count 5, 1 2 3 4 5, relax. Again with other, welcome sir. Again with other leg, 1 2 3 4 5, relax. Okay, this is the one exercise. Now next in which you have to do is just lift your leg up like this and put it down. Again, lift your leg up and put it down. 1. You don't have to hold this exercise. Just put it up. Just lift it up and put it down. 1 2 3
5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now we are moving to the third exercise. In this, आपको क्या करना है? Take a towel or a ball. You have to keep them between your knee. आपको एक टावल को रोल करके या फिर एक एक्सरसाइज बॉल को आपके दोनों नीज के बीच में रखना है. Now press the ball or towel roll with both of your knee. Hold it for 5 count. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Again. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Again. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Again. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. This is our third exercise. Now I will teach you one more. In this, same you have to do like आपको same towel roll को बीच में रखना है दोनों knees के. Now press the towel roll and straighten your knee at the same time. Hold it for 5 count. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Again, press the roll and lift your knee. Straighten your knee. Sorry. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Again. 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 1, 2, 3, 4, 5. Relax. So these are few exercises which you can do at your home by yourself. I will share the link of the more exercises with Sanjana ma'am. She will forward you the other exercises. Okay. ये बैठा बैठी करनी है. ये जो नंबर 2 एक्सरसाइज थी. यस सर. यस सर. लेग तो आपने बोला था लिफ्ट करने के लिए. लेग को लिफ्ट करना है और नीचे रखना है. यस सर. तो कैन इट बी डन स्टैंडिंग आल्सो? हाँ, you can do it by sitting or with standing also. Like standing में आप ऐसे कर सकते हो. आप चेयर का सपोर्ट लीजिए. Stand behind the chair. Now lift your leg up and put it down. Up and down. With other leg up and down. Again and down. Thank you. Welcome, sir. Other than exercises, we have some electrical modalities in physiotherapy जो आपके पेन रिलीफ करने में काफी हेल्प करती हैं, which we said TENS and IFT if you heard the term. तो ये मोडालिटीज भी होती हैं जो आपका पेन कम करने में, आपके जो नी जॉइंट में आर्थराइटिस के कारण जो ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हो गए हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में काफी हेल्प करते हैं. So with the combination of our electrotherapy and exercises, there is a very successful treatment of osteoarthritis which we can follow in the physiotherapy. So other than that, there is medical management in which there is a therapeutic injection. They insert you inside your knee, and knee replacement therapies are there, and osteotomy are there, and arthroscopies are there. So these are the medical approaches toward the osteoarthritis. Okay. Now, if you have any queries or anything to ask me or any exercise about knee or arthritis, you can ask me. ये इंजेक्शन का रोल इसमें क्या है घुटने के दर्द में? मैम एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें साइनोवियल देयर इज अ फ्लूइड व्हिच वी कॉल साइनोवियल फ्लूइड. तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, विद द एज दिस फ्लूइड गोज ड्राइड आउट. ये फ्लूइड कम हो जाता है. तो इंजेक्शंस में क्या करते हैं कि ये फ्लूइड को ना आपके हम जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं, नॉट अस द डॉक्टर्स, जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं फ्लूइड को. तो इससे क्या होता है, जॉइंट के बीच में जो फ्रिक्शन है जो खत्म हो गया है वो फ्रिक्शन इंप्रूव हो जाता है.
और इट हेल्प्स यू विद द पेन, उससे आपका पेन भी जो है वो कम हो जाता है। तो यस सर। आपने बोला था कि नी पेन में हिप का एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। जी जी जी। तो जो आपने एक्सरसाइज बताई है वो हिप के लिए भी है कि हिप के लिए कोई और सर दी हाँ सर, दीज एक्सरसाइजेस आर फॉर बोथ नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट आल्सो। लाइक इसमें आप जब प्रेस करोगे तो आपको सिर्फ ताकत आपके नीज नहीं लगानी, इसमें आपको ताकत आपके हिप से भी लगानी, ठीक है। यू हैव टू स्क्वीज योर बट, ओके। एक ये भी आपके हिप के लिए एक्सरसाइज भी है और नी के लिए भी। उसके बाद आप जो स्टैंड होके आपका लेग ऊपर लिफ्ट कर रहे हो, तो दिस एक्सरसाइजेस आर आल्सो फॉर बोथ योर नी जॉइंट एज वेल एज योर हिप जॉइंट। ओके, थैंक यू। वेलकम। इंजेक्शन का असर कितने दिन तक रहता है? एक बार इंजेक्शन का सर सेम क्वेश्चन इज माइन। मैम एक्चुअली ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको डॉक्टर्स मुझसे ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। कर दिया। ये लगवाना कितना सेफ है? ये लगवाना कितना से मैम, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन कि आप नी आर्थराइटिस के ना किस स्टेज में हो। तो डॉक्टर भी आपको अनटिल अनलेस तब तक ये इंजेक्शन सजेस्ट नहीं करेंगे जब तक उन्हें ये लगेगा कि हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से इसको आपके नी को जो है वो ट्रीट नहीं कर पाए, तब तक दे वोंट सजेस्ट यू। इससे ऑपरेशन को हम डिले कर सकते हैं इंजेक्शन लगवा के? मैम इंजेक्शन लगवा के मैम मैम अगेन ये एक बार आपका नी किस स्टेज में है आर्थराइटिस की, ये हम उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि हम इंजेक्शन लगा के नी को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर हम सिर्फ एक्सरसाइजेस या और फिजियो से ही आपके नी को ऑपरेशन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, क्या ये सच्चाई है कि इसमें स्टेरॉइड्स लगाते हैं इंजेक्शन में? मैम अगेन मैम एक्चुअली आपको इंजेक्शन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से डॉक्टर्स दे पाएंगे जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हो। आप अगर मुझसे फिजियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज आपकी है, इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, आई कैन आंसर यू दैट। और बाकी आपको जो मेडिकल मैनेजमेंट है about injections and replacement therapies, doctor will tell you more and a lot about me than me. Okay, thank you. Welcome ma'am. एक डाउट ये आ रही है दिमाग में, जैसे हमारा इमोहा में फिजियोथेरेपी जो है वो अपनी एक्सरसाइज कराते हैं सुबह के टाइम पर। ओके सर। डॉक्टर्स अभी रूपल आपने अपने आप को नहीं बताया कि आर यू आल्सो ए डॉक्टर और यू आर ओनली ए फिजियोथेरेपिस्ट? सर आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो डॉक्टर कौन बनता है फिजियोथेरेपी पे? सर एक्चुअली हम जो है वी आर डॉक्टर्स बट वी डोंट डील विद द सर्जरी पार्ट। ओके, तो लाइक ऑर्थोपेडिक्स जो हो गए, जो आपके सर्जन है, they will tell you a lot and more about these injections and TKR surgeries. हमसे अच्छा वो आपको बता पाएंगे सर। we are doctors also, but ये जो आपके सर्जरीज करते हैं लाइक आपके ऑर्थो सर्जन्स हो गए, ऑर्थोपेडिक्स हो गए, तो ये आपको इंजेक्शंस और TKR इन सब के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ठीक, अच्छा एक पॉइंट और बता दो, ये अपना स्टेयर क्लाइंबिंग जो है, हाँ, स्टेयर क्लाइंबिंग, is it safe for us to do it or not? Okay, सर इट इज सेफ अगर आपको ज्यादा पेन नहीं है, बट अगर आपको इतना पेन है कि आप बिल्कुल एक स्टेप भी नहीं ले पा रहे हो, तो वी विल सजेस्ट कि आपको स्टेयर क्लाइंबिंग आप जितना कम से कम करें उतना बेटर है। आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन यूज नी ब्रेसेस, ठीक है। आपको जस्ट सिंपली पुट इट ऑन और उसके बाद आप चल सकते हैं, यू कैन वॉक प्रॉपर्ली, बिकॉज नी ब्रेसेस क्या करते हैं, आपके जॉइंट को स्टेबलाइज कर देंगे, तो जो अननेसेसरी मूवमेंट होगा हमारे नी का, उसको जो है आप होने से रोक पाओगे, ठीक है। बाकी आप स्टेयर क्लाइंबिंग की बात है तो सर आप उसको कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं करना है, जितना जरूरी है उतना ही आप स्टेयर क्लाइंब करें। फ्लोर पे बिल्कुल नहीं बैठेंगे, नीज को बेंड करके बिल्कुल नहीं बैठना है, थोड़े प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ेंगे। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी। यस मैम। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा मैंने नी रिप्लेसमेंट करवाई हुई है 10 years बैक 2011 में। तो ओके मैम। अब महीने 2 महीने से, या तो ये कोविड की वजह से हम
घर में बैठे रहे हैं तो ज्यादा चला नहीं जाता, तो will these braces help me in any way? Ma'am, braces will help you, but more than braces, exercise will help you. आपको अभी हम I will forward the link of the exercises, तो please do the exercises. एक्सरसाइजेस क्या करेंगे, आपके जो नी के अराउंड मसल्स है ना उनको स्ट्रेंथन करेंगी। तो उनसे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग से क्या होता है कि आपका जो बॉडी का लोड आता है ना, जब हमारी मसल स्ट्रेंथन होती हैं तो वो बॉडी का लोड जो होते हैं अपने पे ले लेती हैं, उसको जॉइंट में नहीं जाने देती हैं। लेकिन अगर आपकी मसल्स ही वीक होंगी तो फिर वो कुछ लोड ही नहीं ले पाएंगी, तो डायरेक्टली आपका सारा वेट और लोड जो है, स्ट्रेस जो है वो जॉइंट पे ही जाएगा। ब्रेसेस आर गुड, but you can do the exercises are more important than braces. TKR के बाद आप क्या एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं? मैम TKR पे बेसिकली हमारी जो नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, लाइक आपको लेट के दोनों नीज के बीच में रख के टॉवल को प्रेस करना है, नीज के नीचे रख के टॉवल को प्रेस करना है, लेट के लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाना है, नीचे लाना है, लेग को बाहर की तरफ ओपन करना है, अंदर करना है, 10-15 मिनट की वॉक करनी है। ये सब मैम एक्सरसाइजेस जो है हम TKR में पेशेंट को सजेस्ट करते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव है। एक क्वेश्चन था मेरा प्लीज। कई बार फॉरवर्ड वॉकिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, पर बैकवर्ड वॉकिंग में कई बार ऐसे लगता है जैसे नी लॉक हो गई है या पेन हो जाता है। व्हाई इज दैट? मैम ये सेम ही है। आपकी ना देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि जॉइंट स्पेस हमारा नैरो हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारी बोन्स में ना फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से हमारी जो बैकवर्ड वॉकिंग होती है वो भी डिस्टर्ब होती है और हमारा बैलेंस में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है मैम, ये प्रॉब्लम भी आपकी एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइजेज आर मस्ट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। थैंक यू। ओके मैम। एंकल वेट लगा के वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं लेट कर? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, आप पहले से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। ठीक है, कितना टाइम हो गया आपको एक्सरसाइज करते हुए? जिंदगी भर करते रहे हैं। ओके सर, आपने पहले ट्राई करा है एक्सरसाइजेस विद वेट? हाँ, मैं रोज करता हूँ। ठीक है, उससे अगर आपको कोई पेन इंक्रीज नहीं हो रहा है और अगर आपको एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज करते हुए आपको बहुत टाइम हो गया है, तो या आप बिल्कुल वेट का यूज कर सकते हैं, बट स्टार्ट विद 0.5 kg। ठीक है, हाँ, डायरेक्टली ही 1-2 kg से कभी नहीं स्टार्ट करेंगे। जब भी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मिनिमम वेट से करेंगे। ठीक है, उसके बाद वी विल ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू द मोर वेट। ओके। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, ये आपके घुटनों के लिए टेबल टेनिस या बैडमिंटन खेल सकते हैं हम लोग? मैम एक्चुअली टेबल टेनिस और बैडमिंटन अवॉइड करेंगे थोड़ा, क्योंकि उसमें हमें बहुत सडनली मूवमेंट करना पड़ता है, बहुत तेज एकदम से आगे भागना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है, बहुत क्विक मूवमेंट होते हैं, तो उसमें आपके नी में ट्विस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अनटिल अनलेस आपका नी पेन फ्री नहीं है, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं है चलने में, बैठने में, तब तक हम अवॉइड करेंगे टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलना। नहीं, कोई सपोर्ट लगा के खेल सकते हो मतलब? मैम स्टार्टिंग केसेस में अच्छा ठीक है। हाँ मैम, स्टार्टिंग केसेस में हम थोड़ा अवॉइड करेंगे जब तक आपका नी स्ट्रेंथन नहीं हो जाएगा। मसाज जो है, ये एक्सरसाइज मसाज ऑन द नीज पेशेंट भी कर सकते हैं? मसाज मैम, सॉरी, आप सर जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम आप पीछे कुछ पूछ रहे हैं? हेलो, sorry, you are not audible to me. Not an issue. Yeah. Purishi, can you repeat your question? ये एक्सरसाइज क्या ऑस्टियोपेनिया के पेशेंट भी कर सकते हैं? यस मैम, ऑस्टियोपेनिया के पेशेंट भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम मैम। नहीं, वो कोई पूछ रहा था मसाज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बता। हाँ मैम, मसाज कर सकते हैं, बट मसाज इज नॉट वेरी मच इफेक्टिव। मसाज कर सकते हैं बट इट इज नॉट वेरी मच इफेक्टिव।
और हमें तो कभी भी लगता है कि मसाज से काफी रिलीफ मिलता है। हाँ, मसाज नहीं है, मिलता है। मसाज नहीं तो झंडू बाम जो है चली आजकल, तो झंडू बाम के साथ लगाओ तो तब भी थोड़ा सा पेन में काफी कम हो जाता है। हाँ सर, एक्चुअली उनमें डाइक्लोफिनेक होता है, तो बेसिकली डाइक्लोफिनेक हम यूज करते हैं पेन रिलीफ के लिए। आप बाम लगवा के हल्का मसाज करवा सकते हो, अगर आपको उससे रिलीफ मिल रहा है तो आप हीटिंग कर सकते हैं इसकी। बाम लगा के आपने हल्का सा मसाज करवाया और आप इसकी हीटिंग भी कर सकते हैं। Can you tell me any sorry ma'am, or any reason for pain in shin of tibia? And ma'am actually उसके लिए मैम मुझे पूरा केस डिस्कस करना पड़ेगा। मैम I can't suggest anything मैं बिना केस shin of tibia। मैम सॉरी shin of tibia। ओके मैम सॉरी, मैं बिना पेशेंट असेसमेंट करे मैं नहीं बता पाऊंगी कि आपको पेन किस वजह से आ रहा है। हम उसके लिए प्रॉपर असेसमेंट करना पड़ेगा, उसके बिना मैं आपको कोई एक्सरसाइज सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। सॉरी मैम। एक्सक्यूज मी परुल जी। यस सर। आपने स्कूल में ही सीख लिया था? नो सर, नो सर, नो सर। आज यू आर सो यंग, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के, तो मेरे को लग रहा है कि जैसे आपको। Thank you, sir. He looks like a school student, actually. Yeah, right. Same thing as everyone. I passed out in 2016. Oh, wow. Okay. Really appreciate your guts and feelings and knowledge. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Any other question? एक चीज और आपकी तारीफ करने वाली ये है कि जिसका जवाब आप दे सकते हो वो दे देते हो, जिसके जवाब में थोड़ा सा शक है, you would always say that the orthopedic doctor to be consulted with that. That's a good quality. That's a wonderful quality in you. Yes, अब क्योंकि मुझे जिस बारे में नॉलेज नहीं है, I can't suggest you कि हाँ आप ये काम कर लो। बेटर होगा कि आप उस कंसर्न पर्सन से जाके बात करें, he will tell you more about that. तभी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। Thank you so much, sir. Thank you. Just asking everyone, in case there are no further questions, then we can wrap up the show. Yeah, we will wrap up. नहीं, आप वो कहते हैं ना एक लिंक दे रहे हैं, तो लिंक हाँ, sure. आप उसको सजेस्ट करेंगे ग्लूकोसामिन? Glucosamine, sorry ma'am. It is a tablet which helps in knees. Ma'am, sorry, I don't know about that glucosamine tablet which you are talking about. Okay. Glucosamine chondroitin sulfate. Ma'am, sorry, I have no idea about it. Okay, ma'am. Rupal, you can share the link on the chat itself. It's possible. Otherwise, we'll share through ERMs today itself. In case you share. Ma'am, I will try. Chat. Ma'am, just give me 2 minutes, huh? Yeah, sure. संजना, चैट वाला हमें तो ना मिलेगा, वो क्लियर हो जाएगा जब मीटिंग खत्म होगी। नहीं, चैट में यहाँ भी मैं एक बार सबके लिए भिजवा दूंगी, so that and otherwise उसके बाद फिर I'll just share with all the ERMs. I will share with you. एक बार यहाँ पे भी शेयर हो जाएगा, people will get to know about it. ले लीजिए चैट का। Ma'am, I shared the link with you. Ma'am, can you please check and confirm? Yeah, we have got it. It's a YouTube link sharing and okay, yeah. I think with this we have come to the end of the show. So firstly, Rupal, thank you. आपने बहुत ही patiently सारे questions का answer किया. Thank you. With each and taking each and everything into account. So that was really beautiful part about you. So thanks a lot. And also we explained like, each and everything in a very, in a very understanding manner, in a very easy manner कि कैसे knee tight हो जाती है, कैसे joints थोड़े tight हो जाते हैं, which was really, I really appreciate that a lot from you.
So thank you so much once again, Rupal. Thank you, ma'am. And we'll see you all again at 5 p.m. show today. So we have breathing exercises for anxiety and stress session with Tanu Gupta. So it's going to be another session at 5 p.m. So मैं अभी आप सबको tea time दे रही हूँ. अब जल्दी से चाय पीकर आ जाओ and let's join at 5 again. So thank you everyone. चाय Okay. दे देना उससे अच्छी. हाँ जी. चाय कॉफी तुम्हें दे देना था. अरे जब भी मिलेंगे ना सविता जी तब पक्का से मैं ही दूंगी. ठीक है. मिलेंगे. डेट बता दो जल्दी से. जल्दी से मिलेंगे. मेरी बहुत लंबी. ठीक है. Okay, ma'am. Okay. Bye, everyone. It was nice talking to you all. Bye. Bye. Thank you, Rupal.